Good afternoon to all present here. I, Muskan Dimri, welcome you all to today's webinar on mitigating the impacts of COVID-19 on menstrual health and hygiene, hosted by National Service Scheme Shivaji College. Just a little housekeeping before we get started. Participants are required to keep their audio and video off throughout the event so as to avoid streaming errors. If you have any questions, you can post them in the chat box that will be taken at the end of the session. Kindly fill the feedback form that will be circulated at the end of the session. We request your cooperation in conducting this virtual event smoothly. We at Shivaji College, a premier institution of University of Delhi, accredited with grade A by NAC, believe in selfless community service and making a significant contribution to the society. In the NSS, students and faculty work together to lend a helping hand to the community. The motto of NSS, not me, but you, reflects the essence of democratic living and upholds the need for selfless services. NSS Shivaji College has conducted numerous initiatives through sessions both physically and virtually, including community outreach program as well as the promotion of education for the underprivileged section of the society. The NSS team of Shivaji College welcomes our speaker, Ms. Amanpreet Ma'am, with a virtual bouquet as a token of gratitude. Thank you. Before beginning the session, let's seek the blessings of Goddess. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। I am pleased to introduce our speaker for the day, Ms. Amanpreet. Ms. Amanpreet is an IRS officer posted as Joint Commissioner Income Tax, New Delhi. She has served in various important charges in Income Tax Department and has also served in the Election Commission of India as expenditure observer during Legislative Assembly elections. During COVID, she has been engaged with various NGOs in providing relief to the vulnerable section of the society. With the help of her batchmates and friends and several NGOs, she has been able to distribute around 12 lakh sanitary napkins across India, including the remotest and farthest districts of our country. She has distributed self-hygiene kits and also been an integral part of the COVID response team, constituted by the income tax officers to help the needy personnel of department and persons related to them in case of medical and other emergencies. Ms. Amanpreet Ma'am has been a frontline warrior in our battle from COVID-19. With the help of some video clippings, let's take a look at her selfless and untiring work she has done for the people.
for sparing your precious time. We are delighted to have you with us. Now, I would like to request our convener, Dr. Ruchira Dhingra ma'am, to share a few words of wisdom. धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों, अमनप्रीत जी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सहदेव, एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स, अन्य कॉलेज से आए मेरे माननीय सहयोगी, आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिवाजी कॉलेज निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि हम समाज में उपस्थित विभिन्न समस्याओं को हर दृष्टि से देखें और अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। स्त्री और मासिक धर्म ये दो चीजें हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, पर विडंबना ये है कि इसको लेकर ना केवल समाज अपने लबों को सी लेता है, इसे हम एक इस बुरी चीज मानते हैं, हम इसे साथ बहुत सारी भ्रांतियां जन्म लेने लगती हैं। आप चौके में नहीं जाएंगे, आप किसी वस्तु को नहीं छुएंगे, और तो और कई जगहों पर तो रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ऐसे में मंदिर के दीवार तो हमारे लिए हमेशा के लिए बंद ही जैसे हो जाती हैं। क्या 3 दिन तक कोई भी बच्ची या महिला अपवित्र हो जाती है? ये भी एक प्रश्न है। दूसरा, गांव में, देहातों में ही नहीं, शहरों में भी जो गरीब तबका है वो गंदा कपड़ा, कई बार रेत, मिट्टी, इन सब का भी इस्तेमाल करता है, जिससे और बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में जन्म ले लेती हैं। शिवाजी कॉलेज की एनएसएस टीम गौरव का अनुभव करती है कि आज हमारे साथ अमनप्रीत जी हैं, जिन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया है। आज वो हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगी और बताएंगी कि किस प्रकार से कोविड में जब हम अपने अपने घरों में नकारात्मक वातावरण में एक अनजाने भय से घिरे हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से बाहर निकलकर महिलाओं को इस बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति कराई। आप सबका पुनः धन्यवाद। आशा है हमें पहले के किए हुए सारे वेबिनारों की तरह इस वेबिनार में भी आपका खुलकर जो स्वागत है, आप जो हमें अप्रिशिएट करते हैं वो हमें मिलेगा, और आपके फीडबैक्स के माध्यम से हम और अधिक दिशाओं में काम करने में अपना कदम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. When it comes to personal health and hygiene, women are facing the brunt of this COVID-19 pandemic. Women, especially in the rural areas, have gone back to the days of using rag or an old cloth as a sanitary napkin. This has led to the worst condition, followed by infections and many other health disorders. In such situation, NGOs and many other government-aided organizations have come to the rescue and provided the needful to such women. Talking about such unsung heroes, today we have with us Miss Amanpreet ma'am. Without any further ado, I will hand over this session to her. Over to you, ma'am. Thank you, Muskan. A very good evening to all the participants, to all the viewers, to all the listeners who are listening to the program, and my heartfelt thanks to NSS Shivaji team. A special mention to Ruchira ma'am, who gave me the opportunity to express my views on the, I think, most hushed topics, hushed topic, which even the most educated strata of our society fears to talk about, और मतलब झिझकते हैं इस टॉपिक को आज भी डिस्कस करने के लिए। रुचिरा मैम, जैसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दी इस टॉपिक की, एंड यू टोल्ड दैट 3 दिन के लिए जो लड़कियां हैं इनको हम बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। तो जब ये कोविड-19 शुरू हुआ तो देयर वर सम पार्ट्स, जब मैं गांव-गांव में जाने लगी तो मुझे लगा ये जो आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट है जिसको लेके इतनी झंझनाहट हो रही है, तो मैम ये लड़कियों के लिए आइसोलेशन वाला कॉन्सेप्ट नया तो बिल्कुल नहीं था। 3 दिन के लिए लड़कियां आइसोलेट रहती थी,
And my journey about this sanitary napkin distribution, about creating awareness on menstrual hygiene started by मैं कहती हूँ कि by my dear friend प्रियल भारद्वाज. प्रियल भारद्वाज मेरे एक सीनियर हैं, आशीष त्रिपाठी सर, उनकी वाइफ हैं, शी इज अ फैशन डिजाइनर, और आशीष त्रिपाठी सर की पोस्टिंग अभी दिल्ली में ही है. तो मैम ने वन फाइन डे, वन इवनिंग व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, तो कॉल आई कि अमन एक डिस्ट्रीब्यूशन है और आई वांट यू टू बी देयर. तो आई थॉट कि मैम उस टाइम फीड माय नोएडा करके एक इनिशिएटिव था जिसके थ्रू जो गरीब मजदूर और जो नीडी लोग थे उनको राशन बांटा जा रहा था, पैक्ड फूड दिया जा रहा था. तो आई थॉट कि ये भी एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि तब तक सैनिटरी पैड किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए, ये इट वाज अनहर्ड ऑफ. और जब मैं वहां पहुंची, ये नोएडा का एक छोटा सा गांव था निठारी के पास, और वहां पे जब पहुंची तो वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं आलोक सिंह सर, उनकी वाइफ है आकांक्षा मैम, वेरी रिस्पेक्टेड वुमेन और वेरी ग्रेट सोशल एक्टिविटीज, जिनके साथ तब से लेके अब तक मैं जुड़ी हुई हूँ. और मैडम उस टाइम आकांक्षा मैम कोविड के बारे में जानकारी दे रही थी लेडीज को, एंड प्रियल ने संगनी सहेली एक ट्रस्ट बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने सैनिटरी नैपकिन बांटने शुरू किए. वहां पे एटलीस्ट 250 ऑफ द वुमेन वर प्रेजेंट, एंड दोस 250 वुमेन, दे वर द ब्रिक किल्न वर्कर्स, जो ईंटों के भट्टे में काम करती थी. तो उनका काम बंद हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन, और ये वो औरतें थी जो अपने घर के लिए कमा के लेके जाती थी. और जब इनसे पूछा गया, जब प्रियल मैडम ने पूछा कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, तो अबाउट 70% ऑफ द वुमेन, दे डिडंट रेज देयर हैंड्स, व्हिच वाज अ शॉक टू मी. एंड आई आस्क्ड प्रियल मैम कि आप एक बार फिर से पूछिए मैम, मुझे लग रहा है इनको शायद समझ नहीं आया हम क्या पूछ रहे हैं. तो सैनिटरी नैपकिन का वो पैकेट उठाया और उनसे फिर से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो, कि आप में से कितनी महिलाएं जानती हैं कि ये सैनिटरी पैड होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं. तो एक एक जब महिला को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम हमें पता है ये सैनिटरी नैपकिन है, इनको यूज कैसे करना है हमें वो भी पता है, लेकिन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी और ड्यू टू वेरियस सोशल मिथ्स, हम ये सैनिटरी नैपकिन आज भी यूज नहीं करती हैं. तो मैंने कहा कि अगर आपको ये आज प्रोवाइड किए जाएं तो आप इनको यूज करोगी. तो उसमें जो बड़ी एज की जो महिलाएं थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम तो जो हमारा कपड़ा चलता आ रहा है वही यूज करते रहेंगे, जो हमारी आगे बच्चियां हैं हम ये जाके उनको दे देंगी. अगेन इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी. एंड दैट टाइम माय ड्राइवर नूर, हु इज फ्रॉम, ही इज मुस्लिम, और इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अ यंग बॉय, ही वाज अकम्पनिंग मी. और जब हम बांटना शुरू किया तो नूर ने भी उनको पैड्स देने शुरू किए, और उस टाइम रोजे चल रहे थे. और जब घर पहुंचे तो एकदम से स्ट्राइक हुआ कि रास्ते में पूरा मैं बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाई. इट वाज अ शॉकिंग थिंग टू मी कि ये महिलाएं जो अपने घर के लिए कमा के लेके जाती हैं, हु आर द ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली, ये अपने लिए 20 रुपए भी महीने के खर्च नहीं कर पाती. और जब नूर से बात हुई, एक तरफ ये नूर था जिसने, एंड ही वाज, मैंने कहा कि भाई नूर तेरे रोजे चल रहे थे, आई एम सो सॉरी, आई एम फीलिंग बैड कि भाई मैंने तुझे भूखा रखा. तो ही सेड कि मैम रोजे का मतलब यही तो होता है कि जो आज मेरे हाथों से आपने जो किया करवाया है मुझसे, तो आज अल्लाह जरूर बहुत खुश हुए होंगे. तो बड़ा अच्छा सा लगा. दिस वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि एक तरफ दिस बॉय हु वाज फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली और इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें एक तरीके से अवेयरनेस आई, एंड ही वाज डिस्कसिंग सैनिटरी पैड्स विद हिज बॉस, व्हिच इज मी, व्हिच इज अ लेडी ऑफिसर. और दूसरा कि उसने कहा कि मैडम हम ये अब आगे भी अगर आपको मौका मिले ना तो हम ये करेंगे. तो बड़ा अच्छा सा लगा. और जब घर पे बैठी तो माय हस्बैंड, ही इज अ बिजनेसमैन, और उनसे जब बात हुई तो जैसे हम ये सोशल मीडिया का युग है, तो हर किसी ने, हमने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, तो हमारा भी एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है. तो मैंने वो फोटोज डाली. तो आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, पेरेंट्स बोथ वर्किंग थे, और फादर अभी रिटायर हुए, जो अभी मदर है शी इज अ डॉक्टर. लेकिन जब रियलाइज किया तो हमने भी कभी घर में मेंस्ट्रुएशन कभी डिस्कस नहीं किया. तो जब फोटोग्राफ्स डाली तो फादर की कॉल आई कि बेटा बड़ा अच्छा काम किया. और ये एक चीज है जो शायद, आई एम फ्रॉम पंजाब, कि पंजाब में भी तब ही शेयर्ड विद मी कि यहाँ पे भी लोगों ने जो राशन बांट रहे हैं
पीपल आर मिसयूजिंग इट, राशन की होर्डिंग होनी शुरू हो गई है। तो ही सेड कि राशन की बजाय अगर हम जो एनजीओज हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो देना चाहते हैं, क्यों ना इनको बढ़ावा दिया जाए और इनको आगे लेके आए कि भी राशन तो हो गया, राशन के साथ जो असेंशियल एक और चीज है महिलाओं की हाइजीन के लिए, सैनिटरी नैपकिन, उसके लिए भी वो कंट्रीब्यूट करें। तो बहुत सी खबरें आने लग गई और जब ये मुहिम शुरू हुई, वी स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा और धीरे 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 करते इट रीच टू 18 इंडियन स्टेट्स और तकरीबन आज की अगर डेट में देखें तो द फिगर हैज रीच टू 13.5 लाख वुमेन, जिनको थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू वेरियस इंडिविजुअल्स, थ्रू वेरियस ब्यूरोक्रेट्स हमने ये प्रोवाइड करवाया है। एंड उस टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड कि मैंने अपना फोन उठाया और जो मेरे में जितने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, 8 मई होता है यूनिसेफ के, तो आई थॉट कि इस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की जाए। तो मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे मैंने उनमें ये वीडियो सर्कुलेट करनी शुरू की। प्रियल मैम का जो ट्रस्ट था उसकी डिटेल्स दी और लोगों को कहा कि बाय वॉट एवर वे यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। तो पहले तो मैंने कई लोगों को कहा कि आप मुझे वीडियोस बना के देना शुरू करें एंड यू स्पीक ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो रुचिरा मैम, आई वाज सरप्राइज्ड कि जो देयर वर सम ऑफ द पीपल जो एजुकेटेड क्लास से भी हैं, जो ऑफिसर्स भी हैं, दे आल्सो रिफ्यूज टू स्पीक ऑन द टॉपिक। और कईयों ने कॉल करके कहा कि अरे तुझे हम अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, बट डोंट आस्क अस टू सेंड द वीडियोस, और हमारा कहीं नाम ना आ जाए। और बड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो आई थॉट कि मे बी चलो अगर पैसे भी दिए तो इन अ वे दे हैव कंट्रीब्यूटेड। तो बहुत से मैन्युफैक्चरर थे जिनकी हमने हेल्प ली। उस टाइम लॉजिस्टिक्स वाज अ मेजर प्रॉब्लम। तो प्रियल मैम ने वॉलमार्ट के थ्रू कांटेक्ट करवा के, देयर वर मेनी एरियाज जहाँ पे वॉलमार्ट ने हमारा सामान पहुंचाया। देन देयर वर मेनी लॉजिस्टिकल कंपनीज जो मेरे जूनियर थे बच्चे, उन्होंने कहा कि मैम हम लॉजिस्टिक कंपनीज को जानते हैं, वी कैन टेक देयर हेल्प, जो ऑलरेडी ऐसे सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम I made myself a sort of bridge between the people who were needy and between various bureaucrats all across services, all across ranks. और मतलब I don't know, उस टाइम लोग इतना बढ़ चढ़ के आगे आए कि जिस जिसको कहा उसने हेल्प की। किसी भी रैंक के ऑफिसर को कहा, उन्होंने आके हेल्प की। छोटी सी एग्जांपल है कि we were able to send the supplies of sanitary napkins to all the prisons of Punjab. वहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, पीके सिन्हा सर, ही इज एडीजीपी। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मेरी जो मदर थी, शी वाज फर्स्ट मदर मेरी, शी वाज सुप्रिटेंडेंट वुमेन जेल, लेट श्री परमजीत कौर, और उनके साथ मैं वुमेन जेल लुधियाना में जाती थी। तो वहाँ पे औरतों की प्रॉब्लम्स भी पता होती थी। तो दैट टाइम आइडिया केम, तो जो अब मेरी आई लॉस्ट माय मदर ड्यू टू कैंसर इन 2000। तो अब जो मदर है, शी इज अ डॉक्टर, जब उनसे बात की तो मम्मी और पापा ये खुद गए लुधियाना वुमेन जेल में एंड दे क्रिएटेड अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द सैनिटरी नैपकिन्स। और वहाँ की लेडीज ने कहा कि यस हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी, सिंस 2 मंथ्स हमें ये मिल नहीं पाए थे, क्योंकि प्रिजन्स में ये जो प्रिजनर्स होती हैं, इनका जो ये सप्लाई ऑफ सैनिटरी पैड्स या वेरियस एसेंशियल प्रोडक्ट्स होता है, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द कैंटीन्स, और जो मुलाकात के टाइम इनके अपने रिलेटिव्स आते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, तो दीज वुमेन, इनकी सप्लाई बंद हो गई थी, इनको हाइजीन प्रोडक्ट्स की। तो जब ये चीज उनके पास पहुंची, सैनिटरी नैपकिन्स उनके पास ये पहुंचे, तो द ग्लो ऑन देयर फेस, द थैंक्स व्हिच दे गिव टू माय पेरेंट्स, एंड दे सेड के मम्मा को कहते कि दीदी आप ये हर महीने आया करो, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत पड़ती रहती है। देन वी अप्रोच एडीजीपी सर, जो पीके सिन्हा सर हैं, उनको बोला कि सर हमने लुधियाना जेल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करवाया, बाय योर गाइडेंस वी वांट टू डू दिस इन ऑल द जेल्स, ऑल द प्रिजन्स ऑफ पंजाब। तो इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय हिम और सारी जेल्स में पहुंचाया गया। देन वहाँ पे जो, एज आई एम फ्रॉम 2010 बैच, तो 28 मई को जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, उस दिन हमने देश के 8 राज्यों में
डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे बैचमेट्स थे उनके थ्रू और जो मेरे सीनियर्स थे उनके थ्रू हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स लगाए। कैंप्स कैसे लगते थे लॉकडाउन के टाइम पे कि जो वहाँ के एरिया के जो एसपी होते थे, एसपी हो गए या डीएम हो गए या जो महिला एसएचओ, जो महिला थाने के जो एसएचओ होते थे, हम उनके पास सप्लाईज पहुंचा दिया करते थे बाय द वे ऑफ इधर द वेरियस एनजीओज जो वहाँ पे एक्टिव थे, या वहाँ पे जो जितने भी ऑफिसर्स होते थे उनके थ्रू, और जहाँ पे नहीं होता था तो वहाँ पे हम बाय रोड भेजते थे वेरियस पासेस और ये सब ऑर्गेनाइज करने के बाद। एंड फ्रॉम बेशक वो अयोध्या हो, वो वाराणसी हो, जम्मू हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी, पौंडीचेरी हो, हैदराबाद हो, हर जगह से हमें जो थैंक्स गिविंग के जो मैसेज मिलते थे और जो लोग कहते थे कि मैडम राशन मिला और टॉर्चेस मिली, काढ़े मिले, हमें आयुर्वेदिक की दवाइयाँ मिली। मैम इस चीज के ऊपर किसी का ध्यान नहीं दिया। एंड जब अम्फान आया बंगाल में, जब बंगाल की जब ये वीडियो शेयर हो रही थी तो इसका शायद ऑडियो नहीं था। इट्स अ वेरी, जो वो जो लेडी कह रही थी, शी वाज सेइंग दिस कि मैडम हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था जब अम्फान आया, जब बदन ढकने के लिए एक सूखा कपड़ा भी नहीं था, उस टाइम आप हमारे पास ये पैड, आपने पैड पहुंचाए। मेरे बैचमेट्स हैं अतुल पांडे और निवेदिता प्रसाद, और ये अतुल पांडे जो सुंदरबन जो आइलैंड्स हैं उन्होंने वहां पे पीएचडी कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी क्लोज टू दीज ट्राइबल एरियाज। तो अतुल ने जब मेरे से शेयर किया कि अमन अम्फान आ गया है और सब कुछ तबाह हो गया यहाँ पे, तो जो आइलैंड्स है वहां पे जाने के लिए जो फेरी जाती है, इट ऑल्सो टेक्स 4 to 5 hours, और वहां पे लोगों को हम राशन पहुंचा रहे हैं और टेम्परेरी हाउसेस बना रहे हैं। तो अतुल को कहा कि अतुल विल यू सेंड द सैनिटरी नैपकिन्स अलोंग विद दिस, तो ऑब्वियसली ही अप्रिशिएटेड द आइडिया। और जब वहां पे लड़कियों को ये पैड्स मिले, महिलाओं को पैड्स मिले, तो उनका ये मैसेज था कि दीदी थैंक्स हमें ये चीज पहुंचाने के लिए, क्योंकि शायद हम ना तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे पास आएगी, क्योंकि अम्फान जब नहीं भी था तब भी सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई हमारे लिए एक बहुत ही मुशद्दत वाली चीज थी। Since that day, Nivedita is continually going herself to the various slums of Calcutta, और वहाँ पे महिलाओं को अब वो जागरूक भी कर रही हैं on menstrual hygiene, and she is giving them the free supplies also. और जहाँ जहाँ फ्री सप्लाई नहीं होती है वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि भाई there are various जन औषधि केंद्र जहाँ पे 1 रुपये पर पैड दिया जाता है। एंड यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ पे होंगे, मेरी उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि हर एरिया में एक जो हमारी आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद वेरी important और वेरी इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट्स, वेरी ब्यूटीफुल पॉलिसीज। इन पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज द मेजर चैलेंज। और इन पॉलिसीज के जो बेनिफिशरीज होते हैं, हमें वही नहीं पता हो, बेनिफिशरी को ही नहीं पता होता कि ये पॉलिसीज हमारे लिए बनी हुई है। तो द स्टूडेंट्स, द एनएसएस जो आपकी टीम है, ये जो पॉलिसीज हैं, जो हर एरिया की, हर स्टेट की जो पॉलिसीज होती हैं, आप जहां जहां भी हो, आपका नेटिव हो या नेटिव प्लेस हो, या आपके दोस्त अगर किसी और स्टेट से हो, तो उनको बोलिए कि जो आपकी स्टेट में ये प्रिवेलेंट पॉलिसीज हैं महिलाओं को लेके, उनको उसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि अगर महिला जागरूक होगी तो वो उन पॉलिसीज का बेनिफिट भी उठा पाएगी। तो देन ऑल दिस, जब हम 17 स्टेट्स में पहुंच गए, और अरुणाचल का भी, जब अरुणाचल की प्रिजन्स में जब हमने सैनिटरी पैड्स भेजे, तो दैट टाइम आई मेड माय ट्विटर अकाउंट। तो ट्विटर अकाउंट में वन गर्ल शेयर्ड दिस के वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव बाय यू, और उन्होंने कहा कि एक टाइम वो, शी वाज अ सोशल एक्टिविस्ट, एंड उनको किसी जेल में जब बंद किया था, तो शी सेड कि उनको पीरियड्स आ गए। तो जब पीरियड्स आ गए, उन्होंने जो थाने में किसी को पूछा, हेल्प करने के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम थानों में तो ये पैड्स रखते नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि पूरे 1 दिन के बाद मुझे ये सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई मिली। तो अब इसको हम इमेजिन द प्लाइट ऑफ द गर्ल, जो पूरे 1 दिन शी वॉज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग उसको रोकने के लिए, उसकी अपनी साफ सफाई रखने के लिए। और अगर हम
एवरीबडी ऑफ यू, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि अगर हम हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं तो देन देयर आर मेनी डिसीजेज स्टार्टिंग फ्रॉम रैशेस टू वेरियस यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीजेज जो एक महिला को सहनी पड़ती हैं। और अगर बात की जाए जब अलग अलग जगहों की, जो हम ग्रामीण क्षेत्रों की या जो हमारे सबर्ब्स होते हैं वहाँ की, तो वहाँ से जब हमें स्टोरीज मिलती थी, तो हरियाणा का गांव है एक नरनौल, जब हम वहाँ गए तो वहाँ की लेडीज, उन्होंने घूंघट निकाला हुआ था और जब वो पैड्स लेके वापस जाने लगी तो उन्होंने अपने अपने साड़ियों में, पल्लुओं में, अपने जो उनके दुपट्टे थे उनमें छुपा के वापस लेके जाने लगी। तो मैंने उनको रोका, मैंने उनको कहा कि मैंने आपको यही चीज तो सिखाई है कि भी जो हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक शारीरिक प्रक्रिया है और ये सभी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रक्रिया है ये जो जिससे हमारे मनुष्यों का ये संसार चलता है और मानव की उत्पत्ति होती है। और पीरियड्स कोई शर्म या हीनता की बात नहीं है। जब उनको बातों में ये समझाया और उनसे जब उनको कहा कि आप भी घर जाके यही बातें अपनी बेटियों से करें या अपनी बहुएं से करें, तो तब भी उनमें एक हिचक थी। अभी 3 दिन पहले मैं यूपी का एक छोटा सा गांव है सिरहौल, वहां गई। वहां पे स्कूल में उन्होंने इनवाइट किया था कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे बच्चियों को अवगत कराया जाए। तो वहां की 9th 10th 11th 12th की जो लड़कियां थी उनसे जब बात हुई, और बात करने के बाद भी जब मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितनी बच्चियां हैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, तो वहां पे अगर 50 लड़कियां मौजूद थी तो 50 में से 25 ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो मैंने उनको पूछा, आई कुड क्लियरली मेक आउट कि ये, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल थे ही वाज अ मेल, जो उनके शिक्षक थे वो मेल थे, और उनके कुछ लड़के थे क्लासमेट्स जो वहां पे मौजूद थे, तो उनसे शर्म के कारण वो अपना हाथ तक नहीं उठा पाई। तो मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। आई रिमेम्बर कि आई वाज इन 8th 9th स्टैंडर्ड और हमारी क्लास में हमारी फ्रेंड को किसी को पीरियड्स आ गए, तब सैटरडेज को हम व्हाइट स्कर्ट पहनते थे। तो जब दाग लग गए उसकी स्कर्ट पे तो हम सब लड़कियों ने चौक लेके उसकी स्कर्ट को साफ करना शुरू किया। एंड हमने देखा कि क्लास के सारे बॉयज चले जाएं और उसको फिर छुपा के बाहर लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे माइंड में भी था कि पीरियड्स बात करने वाली चीज नहीं है, वी कैन नॉट ओपनली डिस्कस अबाउट पीरियड्स। तो इस टाइम जो लॉकडाउन के टाइम हमने ये मुहिम शुरू की, तब रियलाइज हुआ कि बात करने से बात बनेगी। लेट द कन्वर्सेशन ऑन पीरियड्स बिगिन। और तब हमने थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि दैट वाज द ओनली मीडिया जिसके थ्रू हम पहुंच सकते थे, और उनसे लोगों से बात करनी शुरू की। और आई वाज इंसिस्टिंग कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स खुद जाते थे, जैसे बस्ती में जो डीएम थे उन्होंने खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट किए, ही वाज अ मेल ऑफिसर, और जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए तो उन्होंने, ही वाज द वन हु गिव लेक्चर ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो उनको भी मतलब थैंक यू किया मैंने। जैसे एक एसएसपीओ हैं आरती वर्मा पटियाला से, तो ये भी इन्होंने भी खुद जाना शुरू किया, और पटियाला के जितने भी स्लम एरियाज थे, आरती का बर्थडे था एक दिन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, एंड आरती ने अपने फंड्स इकट्ठे किए और आरती ने कहा कि मैडम मैं अपने बर्थडे पे आई वांट टू बाय द सैनिटरी नैपकिन, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टू द अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स। तो आरती का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा। और बख्शीवाला करके एक पटियाला में गांव है, और इस गांव को मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जो इस गांव की पेकुलियरिटी है दैट इज वो जो शनिवार को शनि देवता के नाम पे जो तेल मांगते हैं लोग, तो ये वो वाला गांव है। वहां पे सिंस एजेस द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज दिस, जो इनको बख्शीश मिलती है। तो जब वहाँ की लेडीज को इकट्ठा किया, तो जब वहाँ का जो एनजीओ है एक पावर हाउस यूथ क्लब, तो वो थे, आरती थी, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया कि मैडम ये इन लोगों को चेक करने के लिए एक बार डॉक्टरों की टीम आई, तो इन्होंने उनको ना पत्थर मार के भगा दिया। तो इन्होंने कहा कि हमारे गाँव में कोई एंटर नहीं कर सकता, और हमारे साथ भी यही करने लगे थे। लेकिन जब हमने इनको कहा कि अरे नहीं नहीं, दिल्ली से मैडम आएंगी और उन्होंने तो आपको सैनिटरी नैपकिन बांटने हैं, तो द वुमेन केम फॉरवर्ड एंड वुमेन सेड के यस, कि हम वी विल अलाउ द ऑफिसर्स टू कम एंड डू दिस। और फिर उनसे जब महिलाओं से जब बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारा तो रोजगार ही चला गया लॉकडाउन के टाइम पे, और जो हमारी जितनी भी कमाई होती, जहाँ हमारे पास जो भी सेविंग्स थी या जो भी लोगों ने हमारी मदद की, तो मैम राशन भी आया, लेकिन ना तो हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में किसी को बोल पाई,
कि हमें चाहिए, क्योंकि हमने कभी ये चीज किसी से मांगी ही नहीं। और हमारे घरों में तो क्योंकि इसको अगर हम कपड़ा भी यूज करते हैं और कपड़ा अगर हमारी घर की किसी एल्डर को दिखाई दे जाए तो हमारी तो पिटाई तक हो जाती है। तो बड़ा धक्का लगता है इन चीजों को देख के। और हरियाणा के, यूपी के जो अग्रेरियन सोसाइटीज हैं, तो यहाँ की कई महिलाओं ने जो हमारे वेरियस टैबूज होते हैं वो डिस्कस उनसे किए। तो हर जगह में मुझे लगता था कि अच्छा वहाँ का जो रीजनल टैबू है वो पता लगे। तो उन्होंने कहा कि मैम हमारा तो दिन की शुरुआत होती है कि मतलब दूध बेच के होती है, दूध निकालना होता है हमने गाय भैंसों से, और हमने उसके बाद दूध बेचना होता है, हमने गोबर की पाथियां बनानी होती हैं। लेकिन जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हमें कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू टच दीज मिल्चिंग एनिमल्स। और इसका रीजन क्या होता है, वो कहते हैं कि ये जानवर बांझ हो जाएंगे अगर इनको मेंस्ट्रुएटिंग औरत टच करेगी। तो बड़ा फील होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स आर द नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू इट्स ब्यूटीफुल प्रोसेस आई वुड से, कि जिसके थ्रू एक औरत माँ बन सकती है इफ शी इज हैविंग हेल्दी पीरियड्स। और एक ऐसा सोशल मिथ कि अगर यही पीरियड के टाइम पे अगर कोई लड़की हाथ लगा लेगी तो वो एनिमल, वो जानवर है वो बांझ हो जाएगा। तो बड़ी विडंबना है कि ऐसे ऐसे मिथ अभी भी शामिल हैं। और मुझे याद है कि असम में जो क्वारंटीन सेंटर है, तो वहाँ पे हमने क्वारंटीन सेंटर पे भी ड्यूरिंग लॉकडाउन हेल्दी प्रोडक्ट्स की, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की सप्लाई दी। वहाँ पे मेरे बैचमेंट है, रॉकटिम से किया। तो रॉकटिम को बोला कि रॉकटिम वहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे पहुँचाओ, बिकॉज आई न्यू कि वहाँ पे हर चीज जा रही होगी, शायद ये नैपकिन नहीं जा रहे होंगे। तो रॉकटिम के थ्रू जब वहाँ पे पहुँचाया तो रॉकटिम ने बताया कि वहाँ पे कामाख्या देवी टेम्पल है। और जब कामाख्या देवी को अगर आप जानते हैं, एंड फॉर दोज हु डोंट नो, इट इज अ टेम्पल जो तो इसको मंदिर बंद होता है जब पे जो माता की योनि बनी हुई है उसको सब लोग पूजते हैं। तो भाई अगर इस चीज को हमारे शास्त्रों में, हमारे जो पुराण है हमारे, उनमें इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है इस चीज को, तो उसको हम गंदा, उसको हम अपवित्र, उसको कैसे मान सकते हैं। बल्कि इन 3 दिनों में तो औरत की और ज्यादा केयर होनी चाहिए, उसको और ज्यादा पैम्पर करना चाहिए, उसकी और मदद करनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग कोविड मुझे जो लग रहा है कि ये जो वैश्विक महामारी है, जिस समय महिलाओं की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस समय उनको परिवार की सुरक्षा का और ज्यादा ध्यान रखना है, और घर के सदस्यों की जिम्मेदारियों के साथ अब जो बच्चे घर में रह के ऑनलाइन क्लासेस को लगा रहे हैं, तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं अपने खुद की व्यक्तिगत समस्याओं को कहीं बैकफुट पे ले लेती हैं। या अगर घर में सपोज अगर 10 रुपए आ रहे हैं, तो वो सोचेगी कि मैं 10 रुपए पहले अपने पति पे खर्च कर लूं, अपने इन लॉज पे खर्च कर लूं, अपने बच्चों पे खर्च कर लूं, फिर लास्ट पे जो उसकी जरूरत की चीज होगी वो अपने ऊपर खर्च करेगी। तो अगर आपके घर में बच्चियां हैं, अगर आपके घर में माएँ हैं, तो उनके साथ ये टॉपिक डिस्कस करें और कोशिश करें कि मतलब वो जो उनके अगर उनको ये ना लगे कि भाई अगर मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ, अगर कपड़ा भी यूज करना है, कपड़ा यूज करना इट नॉट अ बैड थिंग। अगर वो साफ कपड़ा हो, अगर उसको बहुत ही सफाई से साफ किया हो और उसको सुखाया गया हो हाई प्रेशर हीट में, तो लेकिन अब महिलाएं उसको क्योंकि सुखा नहीं सकती हैं, क्योंकि वो उनको ये डर होता है कि कहीं वो कपड़ा सूखता हुआ कोई देख ना ले, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से हमें डांटा जाएगा या हमें बोला जाएगा। और जब स्लम्स में पहुंचे हम, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्लम एरियाज। तो स्लम्स की स्लम कोई आईएएस थे महाराष्ट्र के, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आई हैव सीन योर वीडियोस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी नैपकिन्स। मैम हमारे यहाँ तो ना हम मेंस्ट्रुअल कप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप्स इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट आई वुड से। और अगर ये मेंस्ट्रुअल कप्स इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे नॉर्थ इंडिया में और लेडीज इसको यूज करना शुरू कर दें, तो इसके जैसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि नो डाउट ये जो प्लास्टिक यूज होता है सैनिटरी पैड्स में, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। बट स्टिल गंदा कपड़ा यूज करने से अच्छा है कि ये चीजें यूज हम कंटिन्यू रखें। और मेंस्ट्रुअल कप्स की जब बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में जब ये इतनी हाई स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट किए, दे आर वेरी इकोनॉमिक ऑल्सो,
एंड इनको यूज करना भी इजी होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। बट नॉर्थ इंडिया में जब स्लम्स में जाके हम मेंस्ट्रुअल कप्स की बात करते हैं तो दे डोंट वेलकम द आइडिया। द ओनली रीजन इज पीरियड्स को अभी भी टैबू कंसिडर किया जाता है, इसको गंदी चीज माना जाता है कि अगर हम डिस्कस भी करते हैं। तो जब स्लम्स में गए, उन लेडीज से उनकी समस्याएं सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैडम इसको डिस्पोजल करना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और वहां पे जो कुछ लेडीज थी स्लम्स की, इट इज शहादरा का एक स्लम है, जब वहां पे हम गए तो एक लेडी की साड़ी पे जो पिछले महीने उसको पीरियड्स आए होंगे उसके स्टेन लगे हुए थे। तो उसने कहा कि मैडम यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आप बात कर रही हैं कि पैड यूज करें, तो मैडम हमारे पास तो कपड़ा ही नहीं होता है, बदन ढकने के लिए भी साफ कपड़े नहीं होते हैं, तो हम ये पैड कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगी। और लॉकडाउन में दिस कोविड-19 हैज, जो हम दे वर द मोस्टली बेगर्स। तो उन्होंने कहा कि मैम हम तो बाहर भी नहीं जा पाते हैं, लोग भी बाहर नहीं आ पाते हैं, तो हमारी इनके जो सैनिटेशन फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत ही दयनीय होती हैं। तो अगर 100 बंदा उस स्लम में रह रहा है, दे ऑल माइट बी यूजिंग ओनली वन टॉयलेट। तो हमारे मतलब हिंदुस्तान में अभी भी जो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, दे आर अ बिग टास्क टू बी टैकल्ड। और अगर बात करें कि इन महिलाओं की, तो वहाँ के जो एरियाज के एनजीओज होते हैं, जो आप में बहुत से बच्चे वॉलेंटियर्स हैं, तो आपके घर के पास जो भी स्लम होगा, तो वहाँ पे महीने में एक बार अवेयरनेस कैंप जरूर लगाएं। या जो आप जो जन औषधि केंद्र है, वहाँ पे 1 रुपये पर पैड मिलता है, और वो कोई पैसा महंगी चीज नहीं है। तो अगर वहाँ की औरतें, उनको इनकरेज करें कि वो खरीदें, अगर नहीं खरीद पाती हैं तो यू हैव माई नंबर, अगर आप दिल्ली इन एंड अराउंड हैं तो आई कैन ऑल्सो कनेक्ट यू टू द वेरियस एनजीओज, जहाँ की हेल्प, जिनकी हेल्प के साथ हम वहाँ पे फंड्स भेज सकते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोविड। कोविड के टाइम पे अब अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस लें ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, तो बेसिकली देयर माइट बी टू प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट्स ऑन वुमेन। प्राइमरी इम्पैक्ट सपोज कि अगर किसी महिला को कोविड-19 हो गया, तो हाउ विल शी टेक केयर ऑफ हर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो अगर वो हॉस्पिटल में है, अगर वो किसी क्वारंटीन सेंटर में है, तो वहाँ की जो फैसिलिटी है, आई वुड अर्ज टू द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, अब तो बहुत लोगों ने ये रखना शुरू कर दिया है। सिंस यहाँ पे दिल्ली में ही जो छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास, जो उन्होंने अपनी जगह दी है, वहाँ पर 10,000 बेड्स की फैसिलिटी है फॉर द कोविड पेशेंट्स, और आईटीबीपी और वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस इसको मैनेज कर रही हैं। और हमारे मेरे सीनियर हैं आस्था मैम, उनके हस्बैंड हैं बीएम मिश्रा सर, वो वहाँ के डीएम थे। तो जब ये बन रहा था तो उनको संगनी सहेली की हेल्प से तो आए, उनको कहा कि सर जब तक ये क्वारंटीन सेंटर रहेगा और till the last COVID patient recovers, for the women, for the menstruating population, we will be providing them the free supplies of sanitary napkins. Till date, 9,000 patients have been recovered, और उनको जितनी भी hygiene kits थी, which include sanitary napkins also, वो with the help of various NGOs we are providing. और इसी को लेके जब बात करते हैं हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कोविड के टाइम पे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज ऑलरेडी वेरी वेरी बर्डन। और जो वुमेन, अगर हम हेल्थ जो प्रोवाइड करते हैं, इनमें देखें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, और इनको जो पीपी किट्स दी जाती हैं, उस पीपी किट में काम करना इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी हरकुलियन टास्क। और जो महिलाएं हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर किट। अगर जब इनको पीरियड आए होते हैं तो 8 घंटे या 12 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है, तो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू चेंज। हम कहते हैं कि हर 4 घंटे के बाद चेंज करें। तो हॉस्पिटल्स में जो या ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ पे ऐसी किट्स एक्सेस में प्रोवाइड की जाएं, सो दैट जो यहाँ की जो हेल्थ प्रोवाइडर्स, फीमेल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये ना सोचना पड़े कि अगर मेरे ये 3 दिन 4 दिन पीरियड्स चलेंगे तो हाउ विल, उसको ये टेंशन ना हो कि मैंने बाकी लोगों को ये उनको सर्विसेज कैसे देनी है या उनकी मैंने टेक केयर कैसे करनी है। क्योंकि अगर जो हमें हेल्थ प्रोवाइड कर रही, टेक द केस ऑफ फीमेल नर्स, टेक द केस ऑफ फीमेल डॉक्टर, अगर उसको यही टेंशन लगी रहेगी कि मैं
अपना पैड कब चेंज करूंगी, कैसे चेंज करूंगी, 8 घंटे के बाद करूंगी कि नहीं करूंगी, तो वेदर शी विल बी डूइंग जस्टिस टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, अगर उसकी अपनी ही हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो वहाँ के हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन की जाए कि अगर द फीमेल हु इज मेंस्ट्रुएटिंग उनको पीपी किट्स ज़्यादा प्रोवाइड की जाएं, और जो पेशेंट्स हैं उनको जब वो एंटर होते हैं तो उनको पहले से ही इट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ इट कि अभी अगर आपको पीरियड्स आए हैं क्वारंटीन सेंटर्स में भी, तो दे कैन have this facility of having the free supply of sanitary napkins. Now coming back to how to mitigate the impacts of COVID-19 on menstrual health and hygiene. तो globally अगर हम बात करें तो women they make up to 70% of the health workforce, जो मैंने अभी बात किया। और जो अभी एडिशनल चैलेंजेस हैं हमारे ये मेंस्ट्रुएशन को मैनेज करने के लिए, अगर हम इनको देयर आर वेरी वेरी फ्यू एरिया कि हम डिग्निटी के साथ अपनी, अगर हमें अभी भी शर्म आती है कि हाउ कि हम जाके पैड कैसे मांगे, तो ये जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है ड्यूरिंग लॉकडाउन जब स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए, तो जो बच्चियां थी घर में जिनको स्कूल से फ्री सप्लाई मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो अगर इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात ही नहीं करेंगे, वो बच्चियां बात ही नहीं करेंगी, और खुद भी इनका घर से बाहर जाना बंद हो गया, तो हाउ विल दे आस्क द पीपल कि हम अपने पेरेंट्स से वो बोल नहीं सकती हैं, खरीदेंगी कहाँ से? तो एक तो उनको जो सप्लाई है उन तक पहुंचाई जाए, दूसरा इसकी जो असेसिबिलिटी है, असेसिबिलिटी शुड बी देयर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन खुल गया है बट दिस अभी जॉब्स मिलनी शुरू नहीं हुई हैं, जहाँ पे वो जॉब करते थे उनकी सैलरी कम हो गई है। तो घर में जब सैलरी किसी की कम होगी तो ये वाला जो महिला का एस्पेक्ट है अबाउट सैनिटरी नैपकिन, टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप्स, घर में वो नहीं आएंगे। तो वहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे, या जैसे अभी गाजीपुर यहाँ पे एरिया है, वहाँ के ललित जी हैं, उनकी एक टॉय फैक्ट्री भी है एंड ही इज अ बिजनेसमैन। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे साथ के, जो उनकी फैक्ट्री में जो महिलाएं काम करती थी उनको उन्होंने कहा कि टिल एनी फीमेल वर्कर जो भी मेरी यहाँ पे है, तो मैं उनको जब अगर वो काम करेंगी, अगर वो पीरियड्स के टाइम फैक्ट्री में आती हैं, तो उनको फ्री सप्लाई ऑफ सैनिटरी पैड्स दैट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। इट शुड बी रेप्लिकेटेड टू द अदर फैक्ट्रीज ऑल्सो, या इसको अगर सरकार मैंडेटरी बना दे। और जो टैक्सेस हैं, आई थिंक इन पे टैक्सेस कम लगने चाहिए, मतलब जब तक हमारी फैसिलिटीज नहीं है तो व्हाई नॉट टू अबॉलिश द टैक्सेस ऑन सैनिटरी नैपकिन्स। एंड अगर हम कोविड ऐसी चीज है जिसके साथ हमें अब रहना ही पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गो सो इजिली टिल द वैक्सीन कम्स। और अगर हम इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर देखें, तो हमारा जो पीरियड्स होते हैं नॉर्मल कोर्स में भी अगर किसी महिला को, किसी बच्ची को स्ट्रेस होती है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हिल जाता है। तो कोविड-19 डिजीज इट इज वेरी न्यू टू अस, और इसकी वजह से जो हमारा बहुत सी महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट्स थ्रू वेरियस सोशल मीडिया एंड ऑल अगर अवेयरनेस क्रिएट करेगा, तो औरतों को पता लगेगा कि टेकिंग केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। और जब मेंटल हेल्थ की केयर होगी, जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर होगी, तो दीज थिंग्स विल इटसेल्फ बी टेकन केयर ऑफ। एंड सेकेंडली हमें इन चीज़ों का डाटा इकट्ठा, आई थिंक डाटा इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी पॉलिसी और एनीथिंग टू बिकम अ सक्सेस। तो इसका डाटा कैसे इकट्ठा होगा? अभी जो दिल्ली का जो लीगल विंग, जुडिशरी का विंग है डालसा, इनके थ्रू वहाँ के अरोड़ा सर हैं, हेड हैं, तो उनके थ्रू हमने एक मुहिम शुरू की दिल्ली का एक गांव में। तो वहाँ पे हमने कहा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, थ्रू दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, इनके वॉलंटियर्स थे और डालसा के जो वॉलंटियर्स थे, इनके साथ वहाँ पे हम पहुंचे और डोर टू डोर अवेयरनेस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स बांटनी शुरू की। वुमेनाइट करके एक एनजीओ है जो हमारा साथ दे रहा है फ्री किट्स सप्लाईज करने में। तो जब डोर टू डोर हमने ये भेजा तो हमने डाटा इकट्ठा शुरू करना किया
कि कितनी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हैं, अगर नहीं यूज कर रही हैं तो व्हाट इज द रीजन, और उनकी इनकम कितनी, जो यूज कर रही हैं नहीं कर रही हैं उनकी इनकम कितनी है, प्लस कि अगर उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई मिथ है या उनको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो वो क्या कर रही हैं। तो डाटा इज इन प्रोसेस। हमारा ये मोटिव था कि हम वहाँ का जो हमारा एक एरिया है दिल्ली का, उससे शुरुआत करके वहाँ की जो 100% महिलाएं हैं उनको हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पे हम ले आए। तो जब एक एरिया हमारा है कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन और डालसा की हेल्प से अगर ये सक्सेस होता है, तो विद द हेल्प ऑफ वुमेनाइट आई थिंक वी विल बी एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट, वी विल बी एबल टू कन्विंस द पॉलिसी मेकर्स या वेरियस जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि व्हाई नॉट to replicate this in other areas of the Delhi and then in other parts of the country. और देन जो हमारी केयर वर्कर्स होती हैं तो उन तक हाउ टू मिटिगेट द इम्पैक्ट कि उनके पास जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मटेरियल्स हैं, जो एसेंशियल सप्लाईज हैं फीमेल के लिए, अदर मेंस्ट्रुएटिंग हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, कि एक हॉस्पिटल हो गया या क्वारंटीन सेंटर हो गया, अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो गए तो वहाँ हॉस्टल्स हो गए, तो वहाँ पे एक जो प्रोक्योर करना है वो एक आइडिया लगा के पहले से ही प्रोक्योर करके रखे। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने स्ट्रेस में आके होर्डिंग करना शुरू कर दी सैनिटरी पैड्स की भी, तो विच हमें बड़ी दिक्कत आई कि जब हमने खरीदने थे और लोगों तक पहुंचाने थे, तो जो कई वेंडर थे जिनके पास अवेलेबल थे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देयर वर मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ के एरियाज में जो केमिस्ट शॉप थी, हमें एक भी सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलता था। तो वहां से फिर दूसरी जगह से अरेंज किया जाता, तो उतने के सैनिटरी नैपकिन नहीं होते थे जितना हमें लॉजिस्टिक्स में लग जाता था। तो दैट वाज अ मेजर कंसर्न कि मतलब लोगों जो सक्षम लोग हैं उन्होंने होर्डिंग करनी शुरू कर दी, एंड होर्डिंग वाज डन बिकॉज जब लॉकडाउन लगा तो फॉर गुड अमाउंट ऑफ डेज सैनिटरी नैपकिन्स वर नॉट कंसिडर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटीज। तो बड़ा ये भी अजीब बात थी कि भी इसको अभी तक जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और ये दिमाग से चीज स्किप कैसे होगी, बट एज सुन एज इट केम टू द नॉलेज ऑफ पीपल और ये चीज उनको एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में लाया गया। और बहुत से एरियाज ऐसे थे जहाँ पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और फोटोज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, तो आई रिमेम्बर एमपी से देयर वाज सम वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हु कॉल्ड अप माय फ्रेंड निवेदिता एंड टोल्ड के वंडरफुल इनिशिएटिव बाय यू गाइस, दिस थिंग, ये चीज हमारे दिमाग से रह गई थी और इसलिए हमने इसको अब ऐड कर लिया है। और हम जो हमारी राशन की सप्लाईज की जो हमारी किट्स जा रही हैं उस पे हम वी आर नाउ मेकिंग श्योर कि उनमें सैनिटरी पैड्स भी जाएं। तो इवन इफ वी वर नॉट एबल टू रीच एमपी उस टाइम, तो वहां के जो सीनियर ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर, तो हमारा मैसेज था उन तक राशन के साथ सैनिटरी। I have already told कि we should talk about menstrual hygiene more times। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूंगी, इट इज अबाउट द डिस्पोजल ऑफ मेंस्ट्रुअल वेस्ट। क्योंकि कोविड के टाइम पे हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, टू टेक केयर ऑफ अबाउट आवर पर्सनल हाइजीन, टू टेक केयर अबाउट आवर पर्सनल हेल्थ। हम बार बार हाथ धोने को कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर घर से बाहर जाएंगे, बाहर से आएंगे तो हमें नहाना है बार बार, हमें स्टीम लेनी है, हमें ये करना है वो करना है, बट औरत के लिए जो पर्सनल हाइजीन है उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इसेंशियल। इसको बहुत से लोग भूल जाते हैं या इसको नजरअंदाज कर देते हैं या कहते हैं कि गंदी चीजें हमने डिस्कस ही नहीं करनी है। तो इस चीज के बारे में तो आई थिंक इसको जो डिस्पोजल का जो तरीका है, इसको भी, इसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि जो हमारे पैड होते हैं उसको कैसे अखबार में रैप करना है या अगर कोई लिफाफे में पैक करके उसको अच्छे से हमने मतलब डिस्पोज करना है, डस्टबिन में फेंकना है, ऐसे नहीं फेंक देना, सो दैट कि अगर जानवर भी आते हैं या अगर कोई हमारे जो सफाई वाले भी आते हैं, अगर उनको कूड़ा भी उठाना है तो उसमें उनको वो इन्फेक्शन ना हो जाए। बाकी अगर मिथ्स की बात की जाए तो सम पीपल थिंक कि जो अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड लेडी है और उसको शी इज ऑन हर पीरियड, तो उसके ब्लड से भी कोविड फैल सकता है। तो नो, इट इज अ मिथ कि जो अभी तक इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड
कि जो मेंस्ट्रुअल कोविड अफेक्टेड लेडी होगी उसके ब्लड से भी ऐसा हो सकता है, बट स्टिल इसको अगर आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी जब हमने डिस्पोज करना है सैनिटरी नैपकिन्स को, दे आर बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्पोज किया जाए सो दैट और बीमारियां ना लगें। एंड आई होप दिस सेशन आपको इंस्पायर करेगा कि दिस वाज नॉट a part of my regular course of duty, and all thanks to प्रियल मैम जिन्होंने ये आइडिया दिया और जिसको लेके all thanks to my all the batchmates, my seniors, जैसे अंकिता पांडे फ्रॉम वडोदरा, वो बड़ी ही मेरी अच्छी फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं, एंड मेरे बैचमेट हैं अंजनी पांडे जिन्होंने मेरा सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा मैसेज अवेयरनेस क्रिएट की। मेरे और बैचमेट हैं अनूप कुमार, इन्होंने अनूप जैन, अनूप ने एमपी में बहुत ही अच्छा काम किया ड्यूरिंग कोविड, एंड वहाँ पे भी जो इनका स्लम एरियाज थे वहाँ पे इन्होंने खाना पहुंचाया। बड़े ही छोटे गांव से ये बिलोंग करते हैं, सागर के पास है, तो वहाँ पे भी एक हवला करके गांव है जहाँ पे सेक्स वर्कर्स ही अबोर्ड करती हैं, तो वहाँ पे अनूप ने जब खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, तो सैनिटरी पैड भी हमने पहुंचाए। एंड हैदराबाद में सुरेश बाबू हैं मेरे बैचमेट जिन्होंने 5,000 सैनिटरी नैपकिन ड्यूरिंग कोविड ही आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग विद हिज वाइफ हु इज अ डॉक्टर। तो बड़ी ही हार्ट वार्मिंग स्टोरीज हैं। मधुर वर्मा सर हैं, ही इज डीआईजी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जिनकी हेल्प से हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे। और देन गुंजन वार्ष्णेय मेरी फ्रेंड हैं एमपी में, तो उनके थ्रू मुनमुन शर्मा है मेरी बैचमेट जिनके थ्रू हमने एमपी में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अगर ये इतने नाम मैं और इसलिए बता रही हूँ कि आप, हर इंसान का एक नेटवर्क होता है, हर इंसान के पास जो फ्रेंड्स होते हैं, ये फ्रेंड्स की ताकत होती है कि हम उस फ्रेंडशिप को कैसे यूज करते हैं, या हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं हम उनको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो everybody of you, all of you, because you are also associated with a beautiful organization, I have a huge respect for NSS। और आप लोगों में तो ये जो यूनिटी की जो परिभाषा है, आप लोग बहुत भली बातें जानते हैं। तो यूनिटी के साथ और इकट्ठे होके अगर हम ये चीज ठान लें कि हमने इस सोशल टैबू को खत्म करना है, हमने सोसाइटी में चेंज लेके आनी है, यू आर द यंग माइंड्स एंड यू कैन इंडीड ब्रिंग अ चेंज। तो ब्यूरोक्रेसी को भी, हम जैसे ऑफिसर्स को भी आप लोगों की जरूरत होती है, एंड वी विश कि आप में से बहुत से लोग इस साइड आए, ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करें, और जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज आप लोग बनाएं और उन पॉलिसीज को आप लोग इम्प्लीमेंट भी करें। थैंक यू। मैम, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगी कि शिवाजी कॉलेज की एनएसएस टीम, जिसमें हमारे छात्र और छात्राएं दोनों होते हैं, हमारे कॉलेज के पास एक रैन बसेरा है और पीछे एक स्लम एरिया है। इन बच्चों ने अपने आप अपनी पॉकेट मनी से एक क्योंकि 150 बच्चे हैं, तो 150 पैकेट्स इन्होंने अपने आप एकत्रित किए और वहां पे जाके बांटे, उन लोगों को समझाया। और ये हमारी एनएसएस की टीम ने के बच्चों ने ही हमारे पास ये लेके आए बात, ये सबसे बड़ी बात है, हम टीचर्स ने इनको नहीं कहा। और इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आज भी उस शर्म के धागे को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमारी बच्चियां जब भी सैनिटरी नैपकिन्स लेने जाती हैं तो या तो कागज पे लिख के बोलती हैं कि मुझे ये चाहिए, या मोबाइल पे फोटो दिखा देंगी कि हमें ये चाहिए, मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें बोलना होगा, समझना होगा, और खुद समझेंगे तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। और दूसरा, आपसे भी हम ये अनुरोध करेंगे कि आप भी, आपने इतनी अच्छी तरह से हम सबको समझाया है कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी अपने साथ जोड़िए, और वो भी कल के भविष्य हैं और जरूर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपनी टीम को बोलूंगी कि वो आगे की कार्यवाही करें। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Amanpreet ma'am. This was a very insightful session. Thank you, Ruchira ma'am. Now, moving on, I would like to ask you some questions posted by our audience members in the chat box. Ma'am, what do you think we as students can do on our level to help other women, especially the poor and the health workers during this pandemic? सबसे बड़ी चीज, क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोविड। जो हमारी सरकार बार बार छोटे छोटे नॉर्म्स कहते हैं, अगर आपके घर में, अगर आपके आस पड़ोस में
हम सबकी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कोविड को फैलने से कैसे कंट्रीब्यूट करें। मास्क अच्छे से पहने, हाथ अच्छे से धोएं, और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हम उनको अलग अलग तरीके से हम कहते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू लिखते हैं थैंक यू, या देयर आर वेरियस गेस्चर्स वी मेक के हम उनको थैंक यू कहने के लिए कन्वे कर। द बेस्ट थैंक यू टू देम वुड बी कि हम अगर कोविड को स्प्रेड होने से रोकें, और दूसरा कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। और अवेयरनेस जरूरी नहीं होता कि मास स्केल में आपने करनी है। आपके घर में जो हेल्प्स आती हैं, आपके जो ड्राइवर होते हैं या आपके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनको भी अगर आप अवेयर करोगे हाउ टू टैकल कोविड, एंड जब आप सपोज आपके घर में कोई सफाई करने आती है या कुछ आपकी कुक आती है, आप उनको अगर बात करें उनसे कि व्हाट अबाउट देयर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, कि वो क्या यूज करती हैं, इफ दे यूज उनको नहीं तो सप्लाई दें। और जो आपके नियरेस्ट एरियाज है, ऑलरेडी यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल वर्क, तो इसको और स्प्रेड करें। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर, तो आई विल रियली लव टू कॉल यू पीपल, और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। Sure, ma'am. Thank you. Next question. India is such a country which faces a lot of natural disasters like cyclones, floods, droughts, etc. How can we cope with menstrual hygiene in such situations differently? लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि जब अम्फान आया तो वहां पे दिस वाज वन थिंग, जब लोगों ने दिल खोल के कंट्रीब्यूशन दिए फॉर फूड, फॉर टारपोलिन्स, फॉर उनके टेम्परेरी हाउसेस बनाने के लिए, बट समहाउ दिस थिंग स्किप्ड इन देयर माइंड्स। तो लेट अस प्लेज कि जब आगे भी अगर ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वहां पे जब रिलीफ सप्लाईज पहुंचे, तो वहां पे अगर हम में से कोई भी अगर होगा, तो दे शुड रिमाइंड देम कि उन रिलीफ सप्लाईज में हमारी ये जो मेंस्ट्रुअल किट की एक एसेंशियल चीज होती है, सैनिटरी नैपकिन, ये जरूर पहुंचे। Okay, ma'am. The taboos which you have talked about are still prevalent in the society. So, how can we change the thinking of people on such issues? एज आई टोल्ड, बात करने से बात बनती है। स्टार्ट द कन्वर्सेशंस। पीरियड्स आर नॉट अ गंदी चीज। पीरियड्स आर नॉट, इट इज नॉट अ थिंग। ये तो हर महीने एक औरत को आनी ही आनी है, और अगर हर महीने आएगी और अगर हेल्दी पीरियड्स आएंगे, तो तभी घर की औरत वो स्वस्थ रहेगी। तो स्टार्ट द कन्वर्सेशंस, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। द वेरी एसेंशियल थिंग इज कि अभी भी देयर आर, अगर हम बात भी करें ना, तो अगर ऑफिसेज में भी होते हैं, तो भी ये हिचक होती है कि अपने सीनियर से कैसे बात करें। तो इवन लाइक यू, अगर हमें और आप भी अगर आपस में बात करेंगे, तो समवेयर हमारी वोकैबुलरी होती है, आज मैं डाउन हूँ। या अगर हम सपोज, आई रिमेम्बर कि एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो जो वो लेडी समझाने गई पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही, तो वो दूसरी लेडीज को जब उसने क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन वाज, तुम वो 3 दिन ठीक से बीमार होती हो कि नहीं? तो आई वाज लाइक, ओ पहले तो ये वोकैबुलरी चेंज होनी चाहिए। व्हाट इज डाउन? वी कैन एग्जैक्टली आस्क कि आर यू ऑन पीरियड्स टुडे? तो हमारी वो वोकैबुलरी और ये सारी चीजें, दे इटसेल्फ टेल अस कि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे होके भी हम शायद हम घर में भी, आई डोंट थिंक कितने लोगों ने हमसे भी घर में ये डिस्कस किया होगा, मैंने खुद ने नहीं किया था। और एक ये चीज जो हमारी मम्मियां करती आ रही हैं, वो शायद हमने भी कंटिन्यू कर दिया। हमने भी आगे अपनी बच्चियों से कभी डिस्कस ही नहीं किया। हमने बता दिया ओके पीरियड्स आ गए, नाउ यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, पैड को ऐसे यूज करना है, ये लगाना है, बात का, और अब तुम बड़ी हो गई हो। दैट इज इट। हम सेक्स एजुकेशन, हम पीरियड्स, हम ये चीजें शायद अभी भी वी कंसिडर दिस टू बी हश्ड अपॉन टॉपिक्स। तो इनके बारे में बात करना शुरू करें, और गूगल है, इतना कुछ है, सोशल मीडिया है, तो इनसे इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और आगे अवेयरनेस स्प्रेड करें। A question has came. Which kind of actions from the society and the states can take, which can resolve the myths about menstruation or periods, as we call? Yeah. एज अ सोसाइटी ऑल्सो आई वुड से कि जैसे अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, तो लुधियाना के एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, इनके जो फ्रेंड हैं गौरव बाली, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, तो इनकी ड्यूटी लगी हुई थी राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो ही अलोंग विद हिज वाइफ अदिति बाली, इन दोनों ने लुधियाना का जो एक एरिया था जगरांव और दुगरी, वहां पे सैनिटरी नैपकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए, तो इनको रेजिस्टेंस आई लोगों से कि यार तूने ये क्या काम शुरू कर लिया।
तो क्योंकि लड़का था और मैंने इनको कहा कि भैया आप ना वो कार्टन रख दो, तो एंड टेल द पीपल कि यहाँ से ये सैनिटरी पैड्स आप जिसको चाहिए वो लेके जा सकते हो। तो मुस्कान फर्स्ट डे किसी ने नहीं उठाए शर्म के मारे। सेकंड डे जो लेडीज थी वो लेके और अपने दुपट्टों में छुपा छुपा के लेके जाने लगी। एंड विद इन 15 डेज वहां के जो आदमी थे, तो वो जो राशन लेके आते थे वो भी लेके जाना शुरू कर दिया। तो विद इन 15 डेज अगर ये चेंज आ सकती है, तो मतलब जो कह रहे थे कि ये गंदी चीजें हम कैसे उठा लें, राशन के साथ क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 15 दिन के बाद लोगों को लगने लग गया कि दीज आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर द वुमेन ऑफ देयर हाउस, और वो खुद लेके जाना शुरू कर गए। और 2 महीने के बाद मुझे उनसे उनकी कॉल आई उस वहां से कि मैडम सप्लाई खत्म होगी, कैन यू सेंड द मोर सप्लाईज, क्योंकि लोग मांग रहे हैं। तो सी द डिफरेंस। तो मतलब यही चीजें हैं कि इनसे बात करनी शुरू करें, और ये जो सोशल मिथ्स हैं अपने घरों से ही, जैसे अपने घर से स्टार्ट करें। तो पहले मुस्कान क्या होता था, हमारे जो घर के जो अंदर मंदिर, अब हर घर में मंदिर होता है, टॉयलेट्स अंदर होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर घर के बाहर मंदिर होता था। तो औरत को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो ये रिस्ट्रिक्शंस शायद इसलिए लगाई होंगी कि वो जब चल के जाएगी तो उसको दिक्कत होगी घर के बाहर जाने के लिए। तो मे बी दैट टाइम दीज रिस्ट्रिक्शंस वर देयर, और तब हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं होते थे टू टैकल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हमारे पास पैड्स आ गए हैं, टेम्पून्स आ गए हैं। जब ऐसी चीजें आ गई हैं तो व्हाई कैन नॉट वी वर्शिप इन आवर ओन हाउस। और एंड आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, आप लोग भी करना, अगर दही को हाथ लगाओगे कुछ खराब नहीं होगा, अचार को हाथ लगाओगे तो कुछ खराब नहीं होगा। ट्राई वंस। Thank you so much, ma'am, for answering all the questions so beautifully and precisely. I would now request Dr. Bharat Ratnu sir to deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you so much, ma'am. Your vast journey of heart-touching experiences are thought-provoking and give us a better understanding of this healthy and social issues. Your social work is very admirable, continuing with your nation responsibility that as an IRS officer. Really, your session is very interesting and interactive and gives us a memorable evening. With times in the place when we are in this COVID situation, your words and experience are really a ray of hope for our social humanity. Your words of wisdom have radiate a social and very energy within us. All students and participants are highly encouraged and motivated by your experiences. We really appreciate your valuable knowledge and social service. Really, it's a great work, ma'am. Thanks a lot. And one more thing, apart from this, that Aarti Verma is my classmate from JNU. I just feel glad to know about her. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you, everybody. Now I would like to express my gratitude to the principal, sir, Dr. Shiv Kumar Sahdev, sir, for their invaluable support, for their auspicious presence here. And I would like to thanks to our NSS convener and our inspiration, Dr. Ruchira ma'am, for their vision and unconditional support. I also thanks to our NSS team to make this event successful happen. And I also express my gratitude and thanks to our participant for their patient listening. Thank you so much. Thank you so Thanks a much, lot. sir. All the participants are requested to fill the feedback form that has been circulated in the chat box.